اب ہماری آج جو پہلی ہے میٹنگ اس ایسوسیشن کی، اس ایسوسیشن کا مقصد مدعا یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ فیل ہو گئی ہے. They have not done any concrete towards upliftment of the sports system in Bhadla. All the talented players all over the district. So body آپ کے سامنے ہے. I would like to request now Mr. President Mehraj Sahab to throw some light on the aims and objectives of this association. Please. السلام علیکم. جو آج کا یہاں پہ بڑگام اسپورٹس ایسوسیشن کا جو الیکشن ہوا ہے وہ آج منتخب ہوا ہے، اور اس میں میں ایک پریزیڈنٹ بنا ہوں، اور جو میرے ساتھی ہے مدثر عباس وہ وائس پریزیڈنٹ بنے ہیں، اور ارشاد صاحب جو سیکرٹری بنے ہیں، اور شیر علی جو ہے یہاں پہ یہ ٹریجر رکھا ہے. ہم نے اس کو باضابطہ الیکشن ہوا ہے، اور الیکشن کے بنا پہ یہ سارا کچھ پروسیس ہوا ہے. پچھلے 4-5 دنوں سے ہم یہی پروسیس کرتے آ رہے ہیں، اور آج اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آیا. اور جو ہماری کوشش رہے گی آج کے بعد جو بڑگام اسپورٹس کونسل ایسوسیشن ہے اس کے بدولت سے جو بڑگام میں اسپورٹس کی طرح سب سے زیادہ دھیان چینج ہوا ہے. سب سے جو لوگ ہیں وہ آج اسپورٹس کی طرح نہیں جاتے کہ کئی اور کاموں کے لیے جاتے ہیں. اس کے لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا، اور جو بڑگام کا عوام ہے وہ ہمارے اس کام کو ہمارے ساتھ پوری تعاون دے، اور ہمارے شانہ بشانہ چلیں گے، اور ہم تکبیر سوار میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. ہمارے درمیان بہت سارے سینئر پلیئرز ہیں جنہوں نے کھیل کے ساتھ تعلق رکھا ہے پوری زندگی میں. میں مدثر صاحب کو بولوں گا کہ وہ یہاں پر آئے اور ہمیں تھوڑا سا بتائے کہ جو ہمیں فیوچر میں کورس لینا ہے کس ڈائریکشن میں ہمیں جانا ہے. انہوں نے مجھے عزت سے نوازا یہاں آنے کی دعوت دے کر، اور ہمارا جو یہاں جمع ہونے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بڑگام میں جو اسپورٹس کا انفراسٹرکچر رہا ہے پاسٹ میں، جس کی وجہ سے یہاں کا یوتھ ہمیشہ سفر کیا ہے، اور آج بھی یہاں کا یوتھ سفر ہی کر رہا ہے. انہوں نے ایک سٹیپ یہاں پہ لیا ہے کچھ دن پہلے، اور انہوں نے ایک نئی ایک ایسوسیشن بڑگام میں انہوں نے اسٹیبلش کی ہے. کافی دیر سے یہاں پہ نیڈ لگ رہی تھی ہمیں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اسپورٹس کے ساتھ اپنی جو ہم نے ہماری دیکھیں گے تو کبھی وہ اچھی نہیں تھی، لیکن ہم نے پھر بھی کھیلا وداؤٹ اینی اسپانسرشپ. میں پھر بھی بول رہا ہوں ہمارے پاس پیسہ تو اتنا اویلیبل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے دعویٰ کریں گے کہ نہیں ہم بچوں کے لیے اتنا پیسہ اویلیبل کر سکتے ہیں. بٹ اگر یہاں پہ اتنے سینئر پلیئرس بیٹھے، اگر 1-2 چیزیں سکھا سکے ہم ان چھوٹے بچوں کو، یا کچھ ایسا ماحول کریٹ کرے اس بڑگام ڈسٹرکٹ میں جس کی وجہ سے یہ بچے ہماری طرف اٹریکٹ ہو اسپورٹس، کیونکہ گراؤنڈ لیول سے اسٹارٹ کرنا ہے، 0 لیول سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. کچھ ہے ہی نہیں بڑگام میں. گراؤنڈ دیکھو، گراؤنڈ کی حالت آپ لوگوں کے سامنے، وہ گراؤنڈ جس میں ہم سال بھر کھیلتے ہیں. اگر انفراسٹرکچر ہوتا تو بچے دوڑ کے آتے گراؤنڈ میں. اب بچوں کو بولو یہاں جاؤ، تم ونان تو لس کھسان اور وردی گژھان پروا گژھان خراب، امہ کھۄتہٕ چھُ بہتر گھر گِنٛدُن آنگنس منٛز. Wire in my mind, but you have taken it in middle of the way. کے پاس علم ہے تو آپ اس کو یوز کیجئے صرف انسانیت کے لیے. بے مقصد کی زندگی کتنی بھی طویل کیوں نہ ہو وہ زندگی نہیں کہلاتی. اس کے ساتھ میں ایک لیجنڈ کو دعوت دینا چاہوں گا، 2-4 باتیں اس سے بھی سنیں گے. ایک چیز ہے کہ اگر ہم کسی آرگنائزیشن کو تشکیل دے رہے ہیں تو بٹ وہ ایک آرگنائزڈ وے میں ہی ہونی چاہیے، ایک ڈسپلنڈ وے میں ہونی چاہیے، کیونکہ اسپورٹس کا مین جو بیک بون ہے وہ ڈسپلن ہے. اور جو ہم چیز کہتے ہیں نا وہ پہلے ہمیں مطلب ایکشن سپیکس لاؤڈر، ایکشن سپیک، تو ہمیں کچھ کرنا ہے. تو میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ جب ہم نے انڈر-19 سٹارٹ کیا، میں 2 سال جب میں نے کھیلا، میں 2 سال سلیکٹ نہیں ہوا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بیسک جو کرکٹ کے فنڈامنٹلز ہے وہ کیسے کھیلنے تھے. ہمیں MAT میں لیا گیا تھا تو ٹرائلز پہ، سیمنٹر پہ، تو بتانے والا کوئی نہیں تھا. کرکٹ کھیلتے تھے ہم کھیلتے تھے اپنی طریقے سے، بٹ بتانے والا کوئی نہیں تھا. مگر اس ٹائم ہے کہ جو ہمارا یوتھ ہے، کمنگ یوتھ بہت ٹیلنٹڈ ہے، ان کو بتانا ہے کھیلنا کیسے ہے. اور جو ہماری فیسلٹیز، جو سر نے ابھی کہا کہ بہت ویک فیسلٹیز ہے یہاں پہ ہمیں بڑگام ڈسٹرکٹ میں، ہے ہی نہیں، مانو کہ 5% ہے. آج ہم نے
जो पहली मीटिंग है बड़गाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर आज इनेकाद की है JIC ग्राउंड के नज़दीक। इस एसोसिएशन जो हमने आज जो बनाई है यहाँ पर, इसमें हमने कुछ बंदे नॉमिनेट किए थे फॉर टू बी द एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस एसोसिएशन। तो वो फाइनल हो गए हैं। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो हम मेरे दाहिनी तरफ बैठी है यहाँ पर। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़गाम में जितने भी नौजवान हैं ज़्यादातर स्पोर्ट्स से वाबस्ता है, हमेशा खेलते रहते हैं और स्पोर्ट्स की तरफ इनको और आगे लेने की गर्ज से हमने ये एसोसिएशन बनाई है। इस एसोसिएशन के ज़रिए हम ये डिमांड्स जो जितने भी इनकी डिमांड्स है, चाहे जितने भी नए हमारे पास जवान आ रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए, खेलने के लिए, अपने सेहत के लिए, ताकि वो सोशल लेवल से दूर रहे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा कि जितने भी टैलेंटेड यूथ है स्पोर्ट्स के साथ रहे हैं, चाहे वो कोई भी काम इस वक्त क्यों ना कर रहे हैं, हमने उनको एक शेल्टर के नीचे लाया ताकि हम उनसे एक्सपीरियंस गेन कर सके और जितने भी नौजवान हैं हम उनको स्पोर्ट्स की तरह रागिब करें, ताकि वो जितने भी सोशल इवल्स इस वक्त प्रिवेलिंग सोसाइटी में वो ख़त्म हो जाए। इसके लिए जो एक यूनानिमस ओपिनियन हमने ली इस एसोसिएशन में, वो ये थी कि पहले हम इसकी एक बॉडी तश्कील देते हैं। जो बॉडी आप यहाँ पर देखते हो, हमारे पास प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, वाइस प्रेसिडेंट है। नाउ रेस्ट ऑफ द थिंग्स क्या हमें करना है आगे, वो हमारे प्रेसिडेंट साहब मिस्टर महराज साहब बोलेंगे। तो मैं दावत देता हूँ मिस्टर महराज से कि वो इस पर थोड़ी सी और रोशनी डाले कि हमारा जो रोड मैप कैसा रहेगा इस एसोसिएशन का, हमें कौन कौन से काम है, हमें किस तरह से ये रिप्रेजेंट करनी है जो गवर्नमेंट एजेंसी है, ताकि गवर्नमेंट के पास हम जाए, अपनी ग्रीवेंसेस पीसफुली उनके सामने रखें और वो हमारे जितने भी मुतालबात हैं इस एसोसिएशन के ज़रिए वो हल करें। मिस्टर महराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी बात है ये है कि मैं सब लोगों को अपने दिल से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि जो मेरे सीनियर स्पोर्ट्स है और जो स्पोर्ट्स खेलते रहते हैं, उन लोगों ने जाने न जाने मेरे को प्रेसिडेंट बनाया, और इसके साथ मैं अपने दिल से उन सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फिर से एक बार। और जो रही बात इस ऑर्गेनाइजेशन की, ये किसी के ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी के मात्र किसी इंसान को मान लो कि अपने बेनिफिट के लिए नहीं है, क्योंकि जिस एसोसिएशन को हम चलाने जा रहे हैं, इस एसोसिएशन में एक ही बात होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अपने रिसोर्सेज जनरेट करने हैं, अपने पैसों से चलाना है, और इसमें कोई ज़ाती मुदाखलत नहीं रहेगी। इसमें क्या रहेगा, जो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम है, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के हर किसी भी एरिया का बंदा होगा, किसी भी जगह का कोई भी बंदा होगा, तो उसको हम वेलकम करते हैं आने के लिए हमारे साथ, क्योंकि हम जब किसी को किसी बंदे को अपने साथ लाएंगे तो वो हमको सिखाएगा कि कैसे चलना है, कैसे करना है, क्या क्या पहलू पड़े हैं हमारे पास। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे रही है, जो यहाँ पे बड़गाम में कोई भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन ही नहीं है, किसी की भी कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। कहीं पे जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन है। लास्ट 4 सालों से हम देखते हैं कि कहीं किसी भी जगह पे कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। अब हमने ये कदम स्टार्ट किया है इंशाल्लाह कि हम जो है उसको पूरी ताकत से और पूरे ज़ोर से इसके साथ रहेंगे, और अपने लोगों को और अपने जो हमारे मुस्तकबिल के बच्चे हैं उनको हम अच्छी प्लेटफार्म पे लाएंगे। जो उनकी जो यहाँ पे वो कमियां हैं, मान लो कि ग्राउंड नहीं है किसी और जगह पे, जो यहाँ पे आज तक कोई भी बंदा बाहर मेरे ख्याल से जम्मू तक नहीं गया है, इससे आज हम ये कोशिश करेंगे, और मैं ये वादा करता हूँ कि हम उनके पीछे खड़े हैं, डट के रहेंगे और जी जान से उनके साथ रहेंगे। और जो आजकल के बच्चे हैं, हर किसी जगह पे नशे के साथ मुलव्वस होती है, क्योंकि वो घर से निकलते हैं 4 बजे 5 बजे, यहाँ पे कोई फैसिलिटी ही नहीं है, तो जाएंगे कहाँ। वो बेचारा मजबूर होता है नशे के साथ रहने के लिए, क्योंकि अपना सुकून लेने के लिए। ये सबसे बड़ी गलत बात है, और सबसे मान लो कि सबसे किल्लत है हमारी इस कौम में, क्योंकि नशा इतना ज़्यादा फैलता है। मैं अपने जो हमारे मान लो कि एरिया के बुज़ुर्ग हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, और जो हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके साथ आके मिलो, हम अपने बच्चों का और इनके बच्चों का मुस्तकबिल संवारेंगे। Engaged in different activities. As a result, the sports medium fell aside.
nobody was there ready to spend his time, precious time with these sports activities. वजह यही रहा कि जो आप देखेंगे मेन बड़गाम में, स्पेशली इन मेन बड़गाम, स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ है वो ख़त्म हो गई काफ़ी हद तक. वजह यही रहा कि हमने डिफरेंट फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बड़गाम वी हैव इनवाइटेड यूथ हियर, ताकि हम इनको सुनेंगे, इनके जितने भी मुतालबात हैं उनको हम एक ही जगह एक ही फ्रेम में उनको हम मिनट्स ऑफ मीटिंग में तब्दील करेंगे और अकॉर्डिंगली वी विल टेक देम वन बाय वन. अब हमने पास्ट में क्या किया, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट. व्हाट वी हैव टू डू इट इज़ बिफोर अस, not at our back. What we have to do, we have to look for the future now. जो हुआ हम उसके लिए अब हाथ मल के कुछ नहीं कर सकते. जो भी हमें अब करना है वो हमारे आगे होगा. देखिए, पहले इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मेन प्रॉब्लम है, स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन ये अपडेटेड नहीं है. रिपेयरमेंट्स की ज़रूरत है, नए नए ग्राउंड्स की ज़रूरत है. हमारे पास एक ही ग्राउंड है, यहाँ पर सब एक्टिविटीज़ होती है, जिसकी वजह से इसकी जो टर्फ है काफ़ी हार्ड हो गई. जिसको भी यहाँ पर जो भी गिरता है उसको इंजरी होती है. इन चीज़ों को हमें जो बेसिक फैसिलिटी होती है ना एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, पहले हमें उनको मुहैया करवानी है. उसके लिए वी एज ए यूनियन हैव टू कम टुगेदर अंडर वन शेल्टर एंड हैव टू स्पीक ऑन देयर बिहाफ टू दी गवर्नमेंट एजेंसीज सो दैट दे कैन टेक आवर इश्यूज़ अकॉर्डिंगली. जहाँ हम देखते हैं डिफरेंट जितने भी डिस्ट्रिक्ट से उनकी स्पोर्ट्स एसोसिएशन होती है वो रजिस्टर्ड है और वो अंडर दैट बैनर दे आर सीकिंग देयर बेनिफिट्स अंडर डिफरेंट स्कीम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. वजह यही है कि वी आर लेकिंग इन दिस डिपार्टमेंट, वी आर लेकिंग इन आवर एफर्ट्स. मुझे लगता है जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, यूथ विल गेट अट्रैक्ट ऑन देयर ओन. जब हमारे पास है ही नहीं तो देयर इज नो एनी अदर वे एक्सेप्ट टू फॉल प्रे टू द सोशल इविल्स. तो फर्स्ट इज द foremost थिंग बिफोर अस इज टू डेवलप दिस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द यूथ. देखो जैसे कि जो अंडर 19 का सिलेक्शन जा रही है, उसके बाद अंडर 16 की सिलेक्शन जा रही है, उसके बाद अंडर 14 की सिलेक्शन जा रही है. हम जब किसी मान लो कि 2-4 बंदू या 10 बंदू को हम अंडर 19 में लाएंगे और अंडर 16 में लाएंगे, अंडर 14 में लाएंगे, उसके बाद जो वहाँ पे मोहल्ला होगा उसके वहाँ पे जाके उनसे पहले विनती करेंगे कि जो आपके बच्चे या बाहर रहते हैं उनको हमारे साथ राग़िब करें. हम उनको सिखाएंगे कि आपको कैसे खेलना है, कैसे करना है, और वो खुद ब खुद जो नशियात है उनसे बाहर रहेंगे. क्योंकि जब उनको हम फैसिलिटेट करेंगे वो सीधे हमारे पास आएंगे. ये तो हमारा मकसद है कि हम जो अपना यहाँ पे एरिया है, अपना जो कौम है, उसको संवारने में हमको टाइम लगेगा, लेकिन संवारना तो ज़रूरी है.